Today, we have to explore Gwalior, the city which is known for its history. ऐसे क्या देख रहे हो? तैयार हो जाओ, आपको भी ग्वालियर घुमाएंगे। भाई चेकआउट हमने कर दिया। आज है हमारा ग्वालियर का पहला दिन। होटल बहुत प्यारा था, द ए पार्क होटल। आई सजेस्ट दिस होटल। हमने करा ली थी टैक्सी बुक। क्यों? क्योंकि मेरे को गाड़ी नहीं चलानी थी। आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड ग्वालियर। वाह 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 वाह। तो टैक्सी हमने बुक करा ली है। टैक्सी हमारी आ रही है 10 मिनट में। और खाना यहाँ का स्वाद था। ब्रेकफास्ट हमने सुबह सुबह पराठे, पोहा और चाय मंगाई थी। मज़ा आ गया। रात को मैंने जो जोमेटो से चावला से चिकन मंगाया था ना, वो भी स्वाद था। चाय भी स्वाद थी। चाय भी स्वाद थी भाई। तूने 2 बार लिया है, नहीं तो तू पीता नहीं है। हाँ ये तो है। संदीप भैया आज हमें फुल ग्वालियर की सैर कराएंगे। हम आपको नंबर दे देंगे नीचे। जो भी ग्वालियर आएगा संदीप भैया को फ़ोन कर लेगा। संदीप भैया फिर आपके टूर गाइड बन जाएंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, क्योंकि गुरुद्वारे मत्था टेक लेते हैं। दिन शुरुआत गुरुद्वारे से कर लेते हैं। यहाँ से चंबल कितनी दूर है? चंबल यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर। ओके ओके। कोई है जान पहचान किसी गुंडे से आपकी? अब तो खत्म हो गया डकैत मूवमेंट। अच्छा नहीं, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैंने उसमें देखा था अब डकैत 2 रह गए हैं, एक सफेद कपड़े वाले और एक खाकी वर्दी वाले। सबसे पहले हम आ गए गुरुद्वारे, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਫੇਰ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਫੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਸਲਵਾਇਆ ਤੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 52 ਰਾਜੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗਾ, ਉਸਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋ।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। गुरुद्वारे के दर्शन हमने कर लिए थे। अब बारी थी फोर्ट की, ग्वालियर फोर्ट। तो हम आगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो है फोर्ट है। मम्मी ये भी ले, ये आपने खाने हैं? नहीं ले। जहांगीर के टाइम पर जब 52 राजा इस किले के अंदर कैद किए गए तो उनके साथ में 6 बादशाह हरगोविंद साहब जी को भी नज़र कैद किया गया था। लेकिन जब गुरु हरगोविंद साहब जी ने 52 राजाओं को यानी 52 राजाओं को कैद से छुड़ाया था और यहाँ से निकाल के लेके गए थे, तो यही वो रास्ता था जिस रास्ते के द्वारा 6 बादशाह हरगोविंद साहब जी और 52 राजा पल्ला पकड़ करके गुरु जी का और यहाँ से निकल के गए। आज तो थोड़ा पेट अंदर चला जाएगा। मैंने एक चीज देखी है, राजे बड़े शौकी बंदे होते हैं। 9-9 10-10 रानियां देखते हैं भाई। यहाँ पे ना अब एक नहीं सांपी जाती हो, 10-10 कैसे रख ले। हर महल की हर हवेली की यही स्टोरियां 10-10 11-11 रानियां। हमारी जो मैं कहती हूँ ना, मैं अपनी हवेली दिखाऊंगी तो जा ही नहीं पा रहा है वहाँ पे। तो ये बेसमेंट को हम लोग भोरे बोलते थे, भोरे। हमारे भी वहाँ बेसमेंट है, भोरे उसको बोलते हैं। तो आपको घर की तो याद नहीं आ गई? है आ गई। हम घूम रहे हैं ना तो मम्मी को अपनी हवेली की याद आ रही है। आ जाओ, मेरे को लगता है आप भी किसी राजा की रानी रहे होगे तो ये आपको ये भोरे भूरे सीढ़ियाँ याद है सारी आपको। देख रहे हो अंकल, हमारी माँ भी किसी रानी से कम नहीं है, फुल बता रही है अपनी हवेली कहानी। को कह रही हूँ ना, चल उधर लगे कांचों की रोशनी इधर आती थी, क्रॉस लाइटिंग सिस्टम। पूरे साइंटिस्ट थे हमारे राजा भी। आइंस्टाइन तो ऐसे फेमस करा हुआ है हमने क्योंकि वो अंग्रेज नाम था ना। नहीं तो हम अपने राजाओं के नाम बताए ना तुम्हें, हमारे राजाओं के नाम साइंस में छपे जो जो काम किए उन्होंने। आ जाओ मम्मी। बनी तो जा। स्विमिंग पूल था ये राजा जी का, इस पानी में केसर होता था, केसर मिला देते थे पानी में। ओहो जब ऐसा। ये राजाओं की शौकीनी कम नहीं होती। केसर के तालाब, 10-10 रानियां। भगवान अगले जन्म राजा खियो मेरे को। आपने ना गलत स्कूलों में पढ़ाया हमें, वहाँ जनता लोरा ही पढ़ाते रह गए, यहाँ भेजते हैं अंकल के पास, एजेंट के पास। ये भाई पूरी साइंस बताते हैं कि कैसे कूलर चलते हैं, कैसे सब कुछ होता है, कैसे डिस्को बनाया जाता है यहाँ पे। हाँ जी सर। 500 साल पहले यहाँ जो सुरंग के रास्ते रखे गए थे तो रास्ता यहाँ से था, रेली रास्ता। लगता क्या था दुश्मन को कि रास्ता ये जा रहा है। तेजी तेज राजा, क्लेवर फोक्स। हमने एक चीज तो देखी है यहाँ की, चाहे गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट के पैसे ले रही है बट इन्होंने संभाला नहीं हुआ है ना। गुरुद्वारे, हम किसी भी गुरुद्वारे चले जाएं अलग ही लिश्कारे मार रहा होता है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पैसे भी लेती है बट फिर भी इन्होंने यहाँ पे गंदगी मचा रखी है। मतलब गंदगी गवर्नमेंट ने भी नहीं, हम लोगों ने मचा रखी है, बट गवर्नमेंट भी पूरा साफ सुथरा ख्याल नहीं रखती। ख्याल तो रखना कि जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए, 100 चीजें होनी चाहिए, वो है नहीं जो उन्होंने साफ, बस एंट्री के हिसाब से मतलब टिकट लेते हैं, कोई वर्कर्स नहीं रखे हुए, भाई साफ सफाई रखे हैं यहाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो भाई ग्वालियर हमने सैर सपाटा कर लिया, बहुत गर्मी थी तो पसीने हमें बहुत आ गए थे, तो चेंज हमने कर लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, मुंबई नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी माँ मना कर रही है, क्योंकि इनको ना बोल दिया कि आप मुंबई नहीं आ सकते इंडियन आइडल वालों ने। तो हमने सोचा हम यहाँ से वापसी की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो, या तो हम चंबल जाते हैं, अगर मम्मी हमारी कहती कि डाकू के साथ रहना है, लेट्स ट्राई। अच्छे डाकू होते हैं वो,
एंड नहीं, अगर चंबल नहीं जाते तो हम सोच रहे हैं आगरा रुक जाएंगे, आगरा साइड से पट्टा मारते हैं। दिल कुछ नहीं मन किया, दिल्ली 5 घंटे दूर है, दिल्ली लगा देंगे गाड़ी, वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। टिल देन आप इस व्लॉग में कर दें एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव।